So this is a series unbiased negative clipper circuit where we're having an ideal diode, then we are having a resistor, and from here we're getting output voltage V0. Now in this particular circuit, we are feeding the scalar as the input, where from 0 to time t by 2, its value is plus V, and from t by 2 to capital T, its value is minus V. Right. So my voltage can have only two levels. Either it can be plus V or it can be minus V. Right. Now, depending upon this particular input, I need to plot the output for this particular given circuit. Now, how to analyze this circuit? The first thing you have to consider is that whenever you're dealing with any clipper, that when diode is forward biased. So पहला क्वेश्चन आपको ये आंसर करना है, जब भी कोई सर्किट आप देखोगे कि when my diode is going to be forward biased. And if you're talking about a series clipper like this, so whenever my diode is forward biased, only then I can expect some output. Right. So first question is when diode is forward biased. Second thing, when diode is reverse biased. So आपने पूरे question में you have to figure out this two things. When my diode is forward biased, when my diode is reverse biased. That depends upon what? My applied input voltage. So depending upon my applied input voltage, the behavior of my circuit changes. Let's see for this particular circuit, when I am giving, let's say, plus V volts from the time t is equal to 0 to, let's say, t by 2. So for half of the cycle, I am feeding plus V volts across these two particular input terminals, right? So as I am applying here positive, here negative, this makes my diode to be work under forward bias. Yes or no? Yes. Yes, sir. So if my diode is forward bias and it is an ideal diode, then I can replace it with a short circuit. So you can see here in this figure, here we have shown it a closed switch or a short circuit. So if it is short circuit or closed switch, it means that there is no drop across this diode. So whatever I am feeding, I will be still be getting that output V0. So V0 is equal to V volts for t is equal to 0 to t by 2. So I have checked out that in this circuit, my diode is forward biased when my input voltage is positive. So for the positive half, I am getting the output as positive similarly, if the diode is considered to be ideal diode. Now, if I apply the input from t by 2 to capital T, that is the voltage is minus V. So voltage minus V I applied here, what will happen? This will go minus here, this will go plus. So minus will make this diode to act as a reverse bias or open circuit. So you can see in this figure here, we have replaced the diode with the open circuit, right? And if it is open circuit, it means that whatever the voltage I am applying, it is not generating any current because it is open. So the here the current is in this loop is 0. So output voltage is nothing but 0 volts. So for this particular input, if I try to plot the output, so I can see that from 0 to t by 2, its value is plus V, output follows the input. But from t by 2 to t, my output goes to x-axis, that is at 0 level. Is this clear to everyone? Any doubt from this? Clear हो गया ये? चलें आगे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let me give you a small problem here. Let me open this whiteboard. Suppose now I am again giving one input. Is it visible to everyone, this screen? Yes, sir. Okay. So this is plus V, let's say minus V. This is, let's say, my input. Now my circuit is this, where I am considering the diode to be again ideal one. And let me take out the output across this zero distance R. Now, can you think of what type of output I will be getting from this particular circuit?
So again, go back to the previous one where we said that we have to first of all figure out when my diode is going to be forward biased. तो इस केस में डायोड का फॉरवर्ड बायस होगा बताओ? -V. In negative Minus half. V पे, because I am having only two levels, either plus V or minus V. So if I apply minus V only, then this diode will be in a forward bias mode. It means I will be getting the output only for the minus V input, isn't it? Yes, sir. Because for the plus V, it will act as an open circuit again, है ना? So if I try to draw here the output for the 0 to T by 2, let's say 0 here, T by 2 here, and capital T. Let's say here capital T. So 0 to T by 2, when my input is plus V, this diode won't conduct. Open circuit, है ना? So the output will be 0. So I will make 0 here only. Now, from T by 2 to capital T, when my input is negative V, this is diode is forward biased. So if diode is forward biased, it acts as a short circuit. So whatever I am feeding, I will still be getting the same output. So I will be getting what? Minus V at the output. Is this concept clear? Any doubt from this, please ask. No doubt, sir. Okay, can you give me the name of the circuit? Anyone? Positive clipper. So Positive clipper. clipper Positive and unbiased. clipper. Unbiased. Yes, you need to mention this is unbiased positive clipper, because it removes the entire positive half or upper half, and there is no battery here. That's why we call it unbiased. और पीछे जो किया था वो कौन सा था हमारे पास? Unbiased negative clipper. Negative clipper. ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? अनबायस्ड नेगेटिव क्लिपर, अनबायस्ड पॉजिटिव क्लिपर, ये सबसे सिंपलेस्ट क्लिपर्स थे आपके पास. अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं. उसके लेट्स गो बैक टू स्लाइड्स अगेन, देन आई विल कम हियर. तो ये स्लाइड से हम नेक्स्ट चलते हैं आगे बायस के ऊपर. तो ये जो स्लाइड है, दिस स्लाइड शोज यू द सीरीज बायस क्लिपर सर्किट, राइट? अब सीरीज बायस में क्या हो रहा है देखो ध्यान से. हियर इन सीरीज बायस क्लिपर वी हैव literally applied a DC voltage, because this is a DC supply of VK. VK can be any value 1, 2, 3, 4, 5, कोई वैल्यू होती है VK की. तो मैंने कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाई apart from my input voltage to this particular circuit. अब जब भी आपको किसी भी सर्किट के अंदर एक बैटरी मिल जाएगी along with the diode and resistor, तो ये आपका कैटेगरी कौन सी आ जाएगी? इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बायस्ड क्लिपर. अभी हमें क्योंकि पता नहीं कि नेगेटिव या पॉजिटिव है, वो तो हमें करने के बाद पता लगेगा, लेकिन इतना क्लियर हो गया कि दिस इज द टाइप ऑफ बायस्ड क्लिपर सर्किट. नाउ लेट्स ट्राई टू डू इट्स एनालिसिस. नाउ अर्लियर इन द प्रीवियस सर्किट वेयर देयर वाज ओनली अ डायोड and we are taking it to ideal diode, right? Then we said for the positive it will conduct, for the negative it won't conduct, है ना? But here there are two changes. One change is in the additional supply voltage, and the input also changes. The input is no longer a square waveform; it is a triangular waveform, है ना? तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि इस केस में मुझे डायोड को देखना है कि कब मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा. अब मुझे इतना पता है, अगर बैटरी ना होती, सपोज करो ये बैटरी VK 0 है, तो आई नो दैट इफ माय इनपुट इज पॉजिटिव, है ना, तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस. ये कब लिखा मैंने? फॉर द केस व्हेन माय डायोड इज आइडियल. लेट मी ड्रॉ इट देयर. Let me draw this here so that you can get a more clarity. लेट्स से यहाँ VK की जगह मैं वैल्यू करता हूँ 1 वोल्ट सपोज करो, लेट्स से एग्जांपल, और ये मेरा डायोड सिलिकॉन डायोड है. ठीक है. अच्छा, जो पीछे वाला केस था ना, हमने उसमें एक चीज डिस्कस नहीं करी कि अगर ये आइडियल की जगह मान लो प्रैक्टिकल डायोड हो, फिर क्या होता? और लेट्स से सिलिकॉन डायोड है, तो इस वेवफॉर्म में क्या चेंज आता?
Anyone? अगर डायोड आइडियल ना होता, प्रैक्टिकल डायोड होता, उसका मतलब क्या होता कि इसको रिप्लेस करो विद अ स्मॉल बैटरी। वो एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ हो जाता ग्राफ, थोड़ा एम्पलीट्यूड कम हो जाता, कितना हो जाता? तो -0.7 0.7 नीचे हो जाता। माइनस 0.7 अगर तो हम करेंगे उसके अंदर प्लस करना पड़ेगा, उसके अंदर -0.7 -v plus 0.7. right. So it means if I consider the diode to be a practical diode and that too of silicon, then the peak value changes to. All agree with this? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, अगर डायोड जो आपका पहले था ऐसे लगा हुआ था, उस केस में क्या होता? अगर डायोड सिलिकॉन डायोड है, so वो -0.7 हो जाता है, -0.7. माइनस 0.7 सिलिकॉन का है तो नहीं, उस टाइम में पीक क्या आती? v minus 0.7. All agree with this? Yes, sir. ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी और यहाँ पर सिलिकॉन डायोड लगा दिया। अब हमें ये देखना है कि लेट्स से अगेन वी आर हैविंग अ लेट्स से अगेन ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, सपोज पीक V वोल्ट्स 0 माइनस V। अब मुझे सबसे पहले क्या फिगर आउट करना है कि मेरा जो ये डायोड है ये कब फॉरवर्ड बायस होगा, है ना। पहला क्वेश्चन आंसर में यही करना है। तो डायोड पे देखो क्या लगा हुआ है, डायोड के पी पे क्या लगा हुआ है मेरे, नेगेटिव में बैटरी, नेगेटिव ऑफ मतलब बैटरी। क्या हुआ कि ये मेरा डायोड है, इस साइड पे अगर ग्राउंड है मान लो, तो यहाँ पर -1 लगा रहा हूँ मैं इसके ऊपर, है ना, ये मतलब है इसका। यस सर। तो अब मुझे अगर डायोड को फॉरवर्ड बायस में लेके आना है तो पहले तो इस -1 को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा विद +1, है ना, और 0.7 का ड्रॉप भी देना पड़ेगा आगे। तो कितना हो जाएगा इसका मतलब, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस, और व्हेन माय 1.7 से बड़ा। 1.7. so when my input voltage is equal to or less than or greater than, सोचो, Greater than. greater than, all agree with this greater than, Yes, sir. Yes, sir. that whenever my input voltage is greater than equal to 1.7 volts, what will happen, Forward. diode forward bias, and if the diode is forward biased, output कितनी आएगी, V minus 1.7. very good, that is the main thing we have to consider, that I have to consider first कि my diode is going to be forward biased if my input voltage is at least 1.7 or more. So if I have applied my 1.7 or more, then I will be getting the output voltage which is 1.7 lesser than the input, because I have to pay the drop for that, है ना। तो अब मुझे देख के बताओ इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म में कि what will be the output wave form. Let's say 0 to V somewhere here, suppose it's 1.7. Now just think of what will be the output. क्या इनपुट वोल्टेज अगर ग्रेटर देन 1.7 है तो हमने कहा फॉरवर्ड बायस, अगर ये इनपुट वोल्टेज लेस देन 1.7 है तो क्या होगा, सपोज 1.6 है तो डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस। Reverse रिवर्स bias. बायस। तो उसमें आउटपुट कितनी होगी, if diode is reverse bias it means it acts as an open circuit, 0. 0. So now I am clear, very much clear from this two lines, that if my input exceeds or equal to 1.7 volts, my diode is forward biased and I will be getting the output voltage which is input minus 1.7. And if my input is lesser than 1.7, I won't be getting any output. So just try to make the plot from this particular two answers. तो क्या बनेगा आपका, let me draw it here, कि जब तक 1.7 से नीचे है ये वाला पोर्शन, है ना, तो कनेक्ट करेगा नहीं करेगा, है ना। तो आपकी आउटपुट कब स्टार्ट होगी आनी, लेट मी टेक अ सेपरेट, लेट मी ड्रॉ इट बिलो ओनली।
कि आपकी जब ये इनपुट 1.7 लेट्स से इनपुट 1.7 थी, तो 1.7 तक तो आपकी आउटपुट कुछ आएगी ही नहीं, है ना? तो आई विल बी ड्रॉइंग आउटपुट 0 टिल माय इनपुट गोज 1.7। यहां तक क्लियर है सबको कि जब तक मेरी इनपुट 1.7 से नीचे है, तो आपने बताया लेस देन 1.7 आई आउटपुट इज 0, तो मैंने v नॉट 0 बनाया है। देखो दिस इज माय v नॉट आई एम प्लॉटिंग। द मोमेंट माय इनपुट एक्सीड्स 1.7, तो आउटपुट क्या आ रही है? v minus 1.7। इट मींस आउटपुट फॉलोज इनपुट, है ना? तो इट मींस आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। I have not drawn a perfect triangular waveform. दिखने में दिक्कत आएगी। Then 0 again। तो ये जो आपका इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना के दिखाता हूँ से, ताकि आपको एग्जैक्टली पता लगे क्लैरिटी क्या है। ये आपका सपोज कर रहे थे 1.7 लेवल है, ठीक है? तो लेट मी ड्रॉ अ डॉटेड लाइन हियर। Now let me plot the output. Let's say this is my t/2 interval. Let's say this is my t interval. Now up to 1.7 volts, I won't be getting any output. So my output will be 0. After this, as long as my input is above 1.7, my output follows input. And again, when the moment it goes lesser than 1.7, it remains 0, and it will remain 0 for the negative half. So, is it clear now? कि मैंने कैसे बनाया ये? yes sir, Yes, sir. तो जब तक मैं इनपुट वोल्टेज 1.7 तक मेंटेन रख रहा हूं या उससे ऊपर रख रहा हूं, तो मुझे आउटपुट मिल रही है डेफिनेटली। लेकिन अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 1.7 वोल्ट से कम है, कुछ भी कम है, तो आउटपुट कुछ नहीं मिल रही है। तो ये कौन सा पोर्शन क्लिपर कर रहा है? पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है? Negative. इसका नाम क्या हो जाएगा Bias. आपका? Bias negative. bias negative, bias negative। Biased negative, and I add one more thing, series clipper और सीरीज बायस एक्टिव क्लिपर एक ही बात है। सीरीज क्यों बोला? क्योंकि डायोड आपका सीरीज में लगा हुआ इनपुट, ठीक है? इस सर्किट में किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछो मेरे से, डोंट हेजिटेट। नहीं आया मैं दोबारा से समझाऊंगा, कोई इशू नहीं है सर, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज समझ में आ गई तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। Should I again explain और चलो आगे बताओ। सबको क्लियर हो गया इसका मतलब? कोई आवाज नहीं आ रही तो? यस सर, हो गया। चलो, Yes. अब अगर ये क्लियर हो गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ अभी करने के लिए। अब क्वेश्चन क्या है? Let's say 1 volt here and silicon. अब just take you 2 minutes to observe this circuit कि सर्किट में हो क्या रहा है। फिर उसका फिगर आउट करो कि अच्छा ये हो रहा है। अब देखो कि सिलिकॉन डायोड जो सा है वो कब कंडक्ट करेगा, है ना? कब फॉरवर्ड होगा, कब रिवर्स होगा। अगर फॉरवर्ड होगा तो आउटपुट कितनी आएगी, रिवर्स होगा तो आउटपुट कितनी आएगी। बस ये चीजें आप कॉपी पे लिख लो अपने, एंड देन ट्राई टू प्लॉट द वेवफॉर्म। जिसका हो जाएगा जस्ट रेज योर हैंड, आई विल आस्क यू टू शो योर नोटबुक, ठीक है? करो शाबाश, देखते हैं कितना समझ में आया आपको। देन आई विल डू इट हियर आल्सो।
चलो मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। ये आपका डायोड कौन सा सिलिकॉन डायोड है ना। तो पहले ये देखो, इफ माय इनपुट इज 0, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस डायोड, इज इट फॉरवर्ड और रिवर्स? Forward. हाँ जी, फॉरवर्ड। forward bias. All agree Forward. with this statement that without any Yes, applying sir. of input, my diode is forward bias. Okay, if it is forward bias, what is the output voltage at that time? So 1 volt. 1 volt. All agree to this? बोलो। 0.3. Point three. Yes, sir, 0.3. Yes, sir. Oh 0.3. yes, 0.3. Yes, sir. My bad. 1 volt काट दूं ये मैं? Yes, sir. So it means without any application of my input voltage, my diode is getting forward bias and I am getting a voltage constant that is equal to 0.3 volts without any input. यहाँ तक क्लियर हो सबको? ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो डायोड है, इस डायोड के यहाँ पर क्या लगा हुआ? +1 लगा हुआ है, ये ग्राउंड है और ये सिलिकॉन का डायोड है। तो मुझे देखना है कि ये डायोड किस टाइम पे किस वोल्टेज के ऊपर रिवर्स बायस होएगा। सोचो, अभी क्या हो रहा है? ये फॉरवर्ड बायस, तो ये बैटरी अलोंग विद अनदर बैटरी, ये 0.7 की बैटरी और ये 1 वोल्ट की बैटरी है ना। तो फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो 1.7 वोल्ट की बैटरी लग रही है हमारे पास। अब मुझे बताओ कि ये डायोड रिवर्स कब होगा? अगर तो हमारा VN 0.3 से छोटा हो जाएगा, Vin is equal to is less than 0.3. less than 0.3. All agree to this? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. This is wrong. तो माइनस 0.3 Minus जीरो पे आया था तो माइनस 0.3 से कम। minus 0.3. This is also wrong. सोचो थोड़ा और सोचो। Just try to do a little bit brainstorming अपने माइंड में। सोचो क्या हो रहा है यहाँ पर। ये डायोड जो है वो ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है, किससे? एक बैटरी से। और मैं चाहता क्या हूँ कि किस टाइम पे रिवर्स बायस होएगा, मुझे वो निकालना है। sir 1.7 को exceed करने के बाद 1.7 वोल्ट्स। 1.7 वोल्ट्स तो आपका ये इसके क्रॉस ही आ रहा है ना। तो इट मींस अगर मुझे 1.7 वोल्ट्स उससे खींचना है वापस, तो क्या करूंगा मैं? Okay, let me give you a hint. Suppose I apply minus 0.1 volts. तो क्या होगा? ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा? बोलो yes or no? यस सर। Okay, minus 0.5 पे, yes sir minus 1 वोल्ट पे, हाँ sir minus 1.7 पे, no sir minus 1.8 पे। reverse हो जाएगा अब I think Reverse. It means the moment my voltage is equal to 1.7 volts in negative side, my diode will stop working. Yes or no? yes sir Yes, sir. If I look into this input, somewhere here, suppose this is my minus 1.7. Let me draw a dot line here. So any voltage which is above this level, greater than minus 1.7, that will be accepted by the circuit, for making the diode forward bias. But anything which is lesser than minus 1.7 is making my diode reverse bias. All agree to this or not? That my input voltage yes sir less than equal to minus 1.7 volts, diode is getting reverse biased. If diode is getting reverse biased, what is the output voltage?
बोलो शाबाश। 0. वो तो जीरो, जीरो हो जाएगा। क्योंकि ओपन हो गया। अब मुझे पूरा क्लियर हुआ पिक्चर कि अगर मेरी इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 1 - 1.7 है तो क्या हो रहा है, आउटपुट कितनी आ रही है, आउटपुट कितनी आएगी उस टाइम पे, बोलो। सोच लो एक बारी कि व्हेन माय इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1 - 1.7 मींस ये वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट, ये सारा ऊपर वाला पार्ट ना, ये वाला यहाँ से लेके टिल यहाँ तक। For this particular input, what will be the output? चलो मैं आपके लिए थोड़ा और हेल्प करने के लिए कहता हूँ कि लेट्स से पीक आपकी 5 वोल्ट्स की है, ये -1। अब बताओ मुझे कि अगर इनपुट वोल्टेज मेरी लेसर देन, सॉरी ग्रेटर देन -1.7 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी? चलो और हेल्प कर देता हूँ आपकी। मुझे ये बताओ अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है तो आउटपुट कितनी आएगी? सर +0.3 मतलब 5.3। 5.3। जस्ट छोड़ लो। हाँ जी बताइए, अब अगर मेरी इनपुट वोल्टेज, इफ इनपुट वोल्टेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5 वोल्ट्स पीक पे, तो कितना आएगा आउटपुट वोल्टेज? यहाँ पर थे ना। इसको ऐसे देख लिया करो, कभी कभी दिक्कत हो ना। आपने देखा जब वी इनपुट मेरी 0 थी तो आपने क्या बोला, वी आउटपुट कितनी आएगी? 0.3 बोली, यस और नो? अब वी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट कितनी हो जाएगी? 1.3। फिर अगर 5 होगी तो कितनी हो जाएगी? 5.3। फिर इतना क्या सोच रहे हो उसमें? It means my input will be getting a peak value of 5.3. अब इसकी आउटपुट वेव प्लॉट करते हैं। लेट्स टेक अ सेपरेट पेज। Let's say this is 5 volts, this is -5 volts, right? And let's say हमने क्या कहा था इसमें कि we are input voltage, let me go back, we have derived this, if V input voltage is less than equal to 1.7 -1.7, यही कहा ना हमने? Yes or no? कुछ गलती तो नहीं की यहाँ पर? देखो जरा ध्यान से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये -1.7 एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। -1.7 एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। दोबारा से बोलो। अच्छा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? ओके देखो इसमें हमने क्या किया, सर वहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए। वही मैं कहने वाला था। यहाँ पर आपने बताया नहीं, ये जो मैंने बैटरी लगा रखी है यहाँ उल्टी कर दी, यहाँ पर उल्टा हो गया था। यस सर नो? यस सर। यस बोल सर। देखा करो ना, यू हैव टू सर कीप ऑन -1 दिस वोल्ट। चेकिंग। यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर क्या होगा, बैटरी उल्टी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? देखो लेट मी ड्रॉ हियर, ये 1 वोल्ट है और ये 0.7 है, ऐसे ही है ना? तो ये कितना हो गया? 0.3 हो गया ना? यस सर। तो तभी तो हम यहाँ ये 1% जो लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं।
सर ये 1 तब भी वोल्ट इतनी देर से कंफ्यूजन हो रही थी। यस सर, ये कंफ्यूजन था सर। तो माइनस सी कभी भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो प्लीज स्टॉप मी ओवर देयर, क्योंकि मेरे को आपकी शक्ल दिख नहीं रही है। यहाँ पर आप जब आओगे तो देख लेंगे शक्ल आपकी, पढ़ लेंगे। यहाँ पर शक्ल देखने का टाइम नहीं ना, ना हमको कह रहे हैं ऑन करने वीडियो। तो यहाँ पर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, प्लीज मेक मी स्टॉप, डोंट मेक मी अलाउ मी टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमने ये कहा कि आपका ये बैटरी जो लगा रखी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ है। अगर पॉजिटिव पी पे लगा हुआ है डायोड के तो इट मेक्स द डायोड फॉरवर्ड बायस्ड। तो बिना कुछ लगाए मुझे 0.3 मिल रहा है। अगर 1 वोल्ट लगाऊं तो मैंने कहा 1.3 मिलेगा, 2 वोल्ट 2.3, 3 वोल्ट 3.3, 5 वोल्ट 5.3। तो पीक तो 5.3 पे आ गया, मुझे श्योर हो गया। अब मेरा डायोड कब रिवर्स बायस होगा? तो वो मुझे निकालना था -0.3। -0.3। तो आप लोगों ने पहले शायद बताया भी था -0.3 की है ना, सो दैट इज करेक्ट। तो -0.3 वोल्टेज के ऊपर क्या होगा, आपका डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इट मींस लेट मी ड्रॉ हियर द वेवफॉर्म। यहां पर आपके पास नेगेटिव में लेट्स से -0.3 ये वैल्यू है। तो इसको हम यहाँ से टोटल बना देते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी प्लॉट द आउटपुट बिलो। तो -0.3 के नीचे तो मुझे पता आउटपुट कुछ मिलेगी नहीं मेरे को, है ना। दिस आई एम वेरी मच क्लियर कि -0.3 के नीचे आई वॉन्ट बी गेटिंग एनी आउटपुट, जीरो आउटपुट, है ना। अब मुझे बताओ इसकी वेवफॉर्म कैसी बनेगी, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट। लेट्स मी से दिस इज 0 वोल्ट्स। हाँ जी, बताओ कहां से स्टार्ट करूं मैं बनाना आउटपुट? So 0 0 पे to 0.3 0 to 0.3 should I start from Ze- 0 only? सर 0.3 0.3 very good। तो 0.3 लेट्स से ये लेवल है मेरे पास। तो 0.3 से बनाऊंगा मैं ऊपर वेवफॉर्म। 5. अभी पीक कहाँ आएगी इसकी? 5.3 5.3। और उसके बाद आगे क्या रखूं मैं इसकी वैल्यू? सो 0 आउटपुट होनी चाहिए। 0 होनी चाहिए बिल्कुल। तो क्या करूं, ऐसे बनाऊं? यस सर। हाँ, बताओ ठीक है, ये कुछ और बनाना है? कि when my input is सर 0। हाँ सर बोलो बोलो बोलो। सर जब -0.3 होगा तब 0 होगा, तब तक फ्लैट रहेगा। जब -0.3 होगा तब फ्लैट होगा। तो यहाँ पर -0.3 है, ये वाला पॉइंट ना। तो यहाँ पर क्या कर दूं, ऐसे बना दूं? सर नहीं, तब 0 हो जाएगा। तो 0 बनाया था मैंने पहले तो। यस सर। Let me show you on the slide। यहाँ पर क्या लिया हमने? हमने यहाँ पर कहा कि V के हमने लिया था, हमारे कैसे 1 वोल्ट लिया हमने, है ना। ये सर्किट लिया था हमने, ये वाला नहीं, उल्टा लिया था, ये नहीं था। हमने लिया है बैटरी को P इस तरफ लिया ना हमने। yes sir। पेज बहुत हो जाता है। यस, P दिस साइड लिया है। तो अब एज पर दिस पर्टिकुलर सर्किट आई एम गेटिंग आउटपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट्स विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ इनपुट। अब अगर मैं रिवर्स में लगाता हूं -0.1 सपोज, तो व्हाट इज आउटपुट आई एम गेटिंग? 0.2 0.2। देन -0.2 पे 0.1 -0.3 पे 0। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ से सर वो जो लाइन है वो 0 पे आ जाएगी। मींस ये ऐसे यहाँ से फ्लैट नहीं होगा। कैसे बनेगी वेवफॉर्म? लेट मी ड्रॉ इट हियर सेपरेटली। ये 0.3 पे आपका रेफरेंस है, ठीक है। तो 0.3 से स्टार्ट किया आपने वेवफॉर्म, ये पीक पे गया, यहाँ पर 5.3 पे आया वैल्यू, फिर उसके बाद नीचे नेगेटिव पे आया। अब जब ये आपका पॉइंट ये वाला क्रॉस किया T/2 वाला, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी आउटपुट इनको फॉलो ही कर रही है।
हमने देखा ना कि -0.1 पे 0.2, -0.2 पे 0.1, -0.3 पे 0, तो यहाँ पर आकर फ्लैट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस इनपुट के ऊपर ही आपके लिए प्लॉट बना के दिखाऊं तो कैसा बनेगा पता है, ऐसा देखो कि आई विल बी गेटिंग दिस हाफ एंड दिस, और फर्क क्या होगा सिर्फ इसके अंदर कि ये जो -0.3 लेवल है, अब आउटपुट पे क्या बन जाएगा, ये 0 लेवल, और पीक क्या हो जाएगा 5.3। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो anything which is lesser than -0.3 gets clipped off, it's removed from the circuit. Is it clear, yes or no? Or should I again explain? हाँ बोलो। क्लियर है। क्लियर है, सबको क्लियर है, बताओ जरा बाकी। कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी या कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। सर कैलकुलेशन वाइज समझ में आ गया, बस ग्राफ में थोड़ा प्लॉटिंग में पता नहीं चलता। जैसे 0.3 को हमने रेफरेंस में बाद में 0 ले लिया था ना, तो वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि ग्राफ एक्सिस के नीचे टक जाएगा या फिर ऊपर ही। देखो वो उसके तरीका क्या है बनाने का, मैं उसका कुछ तरीका समझाता हूँ, दिक्कत नहीं होगी। आपने पहले यहाँ पर देखा वेवफॉर्म के अंदर कि मैथमेटिकल एनालिसिस तो क्लियर हो गया आपको कि जब मैंने इनपुट वोल्टेज 0 दी है, आई एम गेटिंग V नॉट एज 0.3। अब मैंने कहा कि जब मेरी इनपुट वोल्टेज लेसर देन इक्वल टू 0 -0.3 होगी तो आपकी आउटपुट वोल्टेज क्या हो रही है, 0। तो ये 0 से लेकर 0.3 के बीच, -0.3 के बीच में आपकी 0.3 से 0 आ रही है। तो यहाँ पर मुझे देखना है कि कैसा मेरा बिहेवियर होगा, है ना। तो मैं क्या करूँ कि अगर मेरी इनपुट वोल्टेज मान लो इक्वल टू -0.1 है, जस्ट अपनी वैल्यूएशन के लिए, तो -0.1 प्लस 0.3 इट विल मेक मी व्हाट, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू -0.2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो ऐसे दिमाग में रखो, आउटपुट फॉलोज इनपुट, कि जो इनपुट की जो शेप है ना, साइन है, ट्रायंगल है, स्क्वायर जो भी है, तो आउटपुट ने इनपुट को फॉलो करना है। कब, जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। अगर डायोड रिवर्स बायस्ड है तो मैंने क्या बोला, आउटपुट इज 0। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फॉर द सीरीज क्लिपर। ये ध्यान रखना, हर एक क्लिपर में नहीं होता ऐसा, सीरीज क्लिपर की बात कर रहा हूँ। सीरीज क्लिपर में अगर मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो मेरा आउटपुट मुझे मिलेगी, क्या मिलेगी, जो भी इनपुट लगाई है। मींस कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर पैरेलल केस में लिया था कि आई हैव टेकन अ बैटरी विद अ डायोड, है ना, तो यहाँ पर आपका ये 1 वोल्ट लिया था मैंने, ये मैंने कहा था आपका 0.7 का ड्रॉप है, तो ये हमने कहा 0.3 का मुझे बेयर करना पड़ेगा दोनों के बीच में ना, 1 -0.7 0.3, तो इट मींस 0.3 मेरा एडिशन हो गया ना इसके अंदर, तो 0.3 मुझे ऐड ऑन करना है किसमें, पीक पे। अगर मैं वेवफॉर्म यहाँ प्लॉट करना शुरू करता हूँ तो मुझे इतना पता है कि मेरी जो आउटपुट है वो स्टार्ट हो रही है 0.3 से, क्योंकि मैंने यहाँ निकाला है कि बिना किसी इनपुट के मुझे आउटपुट मिल रही है। तो एट 0 इनपुट इस पॉइंट पे आई विल बी गेटिंग अ प्लस 0.3 वोल्ट। तो मैंने प्लस 0.3 से स्टार्ट करनी है। प्लस 0.3 मींस अब मैं मान लो वोल्टेज देता हूँ आपकी इनपुट लेट्स से 0.5, तो आउटपुट कितनी आएगी, 0.7 नहीं 0.8। 0.8। इट मींस उसी को फॉलो कर रही है, हमें 0.3 ऐड करते रहो बस, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो इनपुट है उसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, देखो वो लीनियरली बढ़ रही है, ऐसे कम हो रही है। लेकिन जैसे ही 0.3 के नीचे आगे भी -0.3 में स्टार्ट हो गया पार्ट, तो यहाँ पर आके आपका आउटपुट क्या होगी, फ्लैट। इतना ध्यान, अब क्लियर है। यस सर। एनी अदर डाउट एनीबॉडी हैविंग, प्लीज आस्क। ये क्वेश्चंस टॉपिक आपको श्योर शॉर्ट हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आपका क्विज हो, चाहे वाइवा हो, चाहे कहीं पर भी हो, आप प्लेसमेंट में बैठो, हर जगह पेपर्स के क्वेश्चन पूछते ही हैं कि कैसे वर्क करता है ट्रिपर। कोई भी सर्किट दे देंगे, इसकी आउटपुट कैसी आएगी। तो आपने सिर्फ दिमाग में क्या रखना है कि डायोड मेरा कब फॉरवर्ड बायस हो रहा है, कब रिवर्स बायस हो रहा है। अगर फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो आउटपुट कितनी आ रही है, रिवर्स बायस हो रहा है तो आउटपुट कितनी आ रही है। ये क्लियर है, चले आगे।
अब इस सर्किट में मैं कुछ स्लाइड से चेंज कर देता हूँ। अभी हमने ऐसे किया सर्किट किया था ना, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। चेंज क्या करते हैं हम, लेट से ये हमने कर लिया था क्वेश्चन, नहीं ये केस तो नहीं लिया अभी हमने। बताओ ये किया कि इसको नहीं किया? एनीवन? सर वो -1.7 यही है। -1.7 कहाँ पर आएगी? आउटपुट पे? ये तो किया था हमने केस पहले। सर जो आप -1.7 बता रहे थे वो इस क्वेश्चन के लिए था। हाँ चलो करो इसको। यहाँ पे देखो ये 1 वोल्ट लगा है और ये सिलिकॉन की बैटरी है, सिलिकॉन डायोड सॉरी, ठीक है। तो अब ये देखो डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा अगर इनपुट आपकी ये है? अब बिना किसी इनपुट के डायोड क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है रिवर्स हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। रिवर्स हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस डायोड को मुझे फॉरवर्ड बायस करने के लिए और ज्यादा वोल्टेज लगानी पड़ेगी। यस, कितनी वोल्टेज लगाऊंगी फॉरवर्ड बायस, मुझे बताओ। 1.7 ग्रेटर देन 1.7। ग्रेटर देन इक्वल टू 1.7। ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि इफ माय इनपुट वोल्टेज एक्सीड्स 1 वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट तो ये है और 0.7 इसका ड्रॉप, तो 1.7 से ऊपर अगर मैं लगाता हूँ पॉजिटिव वोल्टेज तो आपका डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड। एंड व्हाट विल बी द आउटपुट? So 5 minus 1.7. मतलब instead of writing 5 we will write v in minus 1.7, क्योंकि 5 तब बोलेंगे अगर स्केयर होगी, ठीक है। यहाँ तो वेरी करें ना हमेशा, कभी यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा है। So I will say v in minus 1.7 and if my input voltage is lesser than 1.7 तब क्या हो रहा है डायोड? Reverse. रिवर्स बायस, Reverse bias. So in that case what is the output? 0। Right. अब ये दो चीजें मुझे मिल गई। कैन यू ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म नाउ? बन जाएगी आउटपुट वेवफॉर्म? सर वो आपने इससे पहले बनाया था। बताओ आप क्या बनाया था, बना देते फिर से। सर बस ट्रायंगल थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। ट्रायंगल श्रिंक हो जाएगा, कहाँ से श्रिंक करूं उसको मैं बताऊं? 1.7 प्लस में माइनस में? सर प्लस में। प्लस जैसे 1.7 यहाँ पर है, तो टिल माय इनपुट इज लेसर देन 1.7 ये वाला केस, आपकी आउटपुट क्या है? 0। लेट मी मेक अ डॉटेड लाइन हियर। सर उस टाइम से शुरू होगा। हाँ, तो आपका अगर मैं आउटपुट प्लॉट करूं तो आपकी आउटपुट पहले 0 रहेगी कब तक? 1.7। जब तक आपका इनपुट 1.7 नहीं होता है। जैसे इसको क्रॉस करेगा तो इसको फॉलो करेगा, फिर जैसे ये नीचे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। एंड फॉर द नेगेटिव हाफ आउटपुट कितनी आएगी? 0 0 एंड इसकी पीक कितनी आएगी? 3.3। अब ये कौन सा क्लिपर हुआ, इसका नाम क्या बनेगा पूरा? बायस्ड नेगेटिव क्लिपर। बायस्ड, ये बोलो सीरीज बायस्ड नेगेटिव।
Any doubt in this, please ask. Clear है ये? Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आपने घर से करना है. क्वेश्चन क्या है कि इसी सर्किट में अब डायोड को उल्टा कर दिया मैंने. इनपुट मेरी वही रखी मैंने सेम. Let's say this is 1 volt silicon diode. तो आपने ये बना के आना, ठीक है? We'll discuss it in the next class कि इसकी आउटपुट कैसी बनेगी और उसका नाम क्या होगा. राइट? करें स्टॉप. काफी टाइम हो गया आपके नेक्स्ट का. ये नोट कर लिया बच्चे डायग्राम? सर ये पॉजिटिव फ्लिपर हो जाए. कौन से? पॉजिटिव फ्लिपर. समझ नहीं आया कौन से, क्या कह रहे हो? ये मैंने ये बोला कि आपका जो सर्किट है, आपने इस सर्किट का आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है अगर ये इनपुट है, और ये बताना है कि कौन सा क्लिपर है. मुंजाल सर. हाँ जी, जल्दी से स्टॉप कर रहे हैं. थैंक यू. ठीक है सर. ठीक है बच्चों, विल सी नेक्स्ट टाइम, राइट? Thank you, sir. Sir. ओके बच्चों, ओके, टेक केयर.